Welcome to Rajya Sabha TV's coverage Verdict 2019. We are bringing you the trends and we'll slowly start bringing you the results as well as and when they are declared by the Election Commission of India. Let us just update our viewers as of now. The NDA is leading on 340 seats, the UPA 92, others 110. We're getting you some breaking news right now, Sonia. एनडीए को 340 से ज्यादा पर बढ़त हासिल हुई नजर आ रही है और 542 सीटों के ये आंकड़े हैं। यूपीए अभी 92 पर आगे चल रहा है, लेकिन एनडीए को एक तरह से साफ बढ़त, बीजेपी को जबरदस्त बढ़त यहां पर दिख रही है और किसके सर सजेगा, सरताज कौन बनेगा, ये बिल्कुल साफ होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि 12:30 बजे तक तस्वीर और भी साफ हो जाएगी और एक तरह से रिजल्ट्स भी आने शुरू हो जाएंगे, लेकिन अभी जो रुझान आ रहे हैं बिल्कुल साफ बढ़त यहां पर एनडीए को नजर आ रही है। मोदी मैजिक जिसे कहा जा रहा था, लगता है वो बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम किया है एनडीए के लिए और बीजेपी के लिए, और 340 से ज्यादा सीटें यहां पर एनडीए की झोली में जा सकती है अगर ये रुझान रिजल्ट्स में तब्दील होते हैं। फ्रैंक, Absolutely, and if these trends hold, of course, it looks like the exit poll figures will also be true. Many pollsters had predicted that the BJP or the NDA will clearly sail past the 300 mark, and it looks very clear as of now that the BJP is well and truly heading in that particular direction. और हैरानी की बात एक बार फिर से यही कि यूपीए जो है वो 3 डिजिट भी नहीं पहुंच पा रहा है, अभी तक 92 तक ही सिमटा हुआ नजर आ रहा है। और एनडीए जो है, जिसे कहा जा रहा था कि 300 से ज्यादा, जो जिस तरह के रुझान पहले भी और एग्जिट पोल में भी जो आंकड़े सामने आए थे, वो अब रुझान में बिल्कुल साफ हो रहा है कि 340 पर आगे चल रहा है इस समय एनडीए का आंकड़ा, लेकिन यूपीए अभी भी 92 पर अटका हुआ है। हालांकि अदर्स की अगर बात की जाए तो 110 पर इस समय आगे चल रहे हैं। तो काफी दिलचस्प आंकड़े हैं, हालांकि उम्मीदों के मुताबिक लग रहे हैं जैसा कि एग्जिट पोल्स बयां कर रहे थे। और यहां पर आप देख सकते हैं कि किसका जादू कितना काम किया है यहां पर। Absolutely. These are the latest figures that we are bringing you on our screens right now. Tweets coming in as well as far as leaders are concerned. Sushma Swaraj has tweeted. तो सुषमा स्वराज कह रही हैं कि प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी को इतनी बड़ी विजय दिलाने के लिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन। मैं देशवासियों के प्रति हृदय से कृतज्ञ व्यक्त करती हूं, ये कहना है सुषमा स्वराज का। हालांकि सुषमा स्वराज बहुत ज्यादा इस बार दिखी नहीं। अगर चुनाव प्रचार की बात की जाए, मोदी का मैजिक ही हर प्रतिद्वंदी को जिताएगा ऐसा लग रहा था, और लग रहा था कि 542 जो सीटें हैं सब पर नरेंद्र मोदी एक तरह से लड़ रहे थे, विपक्ष के सामने अकेले खड़े थे क्योंकि उन्हीं के नाम पर वोट मांगे जा रहे थे। और किस तरह से राष्ट्रवाद का मुद्दा हावी रहा, किस तरह से काम यहां पर वोट दिला पाया बीजेपी को, एनडीए को, ये अब साफ होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यूपीए अभी भी 92 पर अटका हुआ है। ये सिर्फ रुझान है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि 12:30 तक कुछ रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। Absolutely. You know, the point that you are making just now, Sonia, I mean, taking that forward, even in South India, states like Kerala, states like Tamil Nadu, Karnataka, Andhra Pradesh and Telangana, where the regional parties are very strong, and the results also show that, in fact, on our screens, even there the BJP candidates were all contesting on Prime Minister Narendra Modi's name, and they did not bring up the local issues. So it's very clear that this election was a mandate really for Prime Minister Narendra Modi. Let's go across to our guests as well. We'll go across to our other centers during the course of the next 1 hour and get you the details as and when they keep coming to us. Introducing the guests for now, Hitesh Shankar, editor Panchjanya, joining us on the program right now. Also with us, Aditi Phadnis, political editor of the Business Standard. Uday Kumar, editor Amar Ujala, is also here with us, and we'll be joined by political guests as well during the course of the next 1 hour. Aditi, I'd like to begin with you first. I mean, a clean sweep really as far as the Hindi heartland, the northern belt is concerned for the NDA. Absolutely, and although some numbers have come down, BJP last time had 71, it might not reach 70 in Uttar Pradesh. In Uttar Pradesh, but Hindi heartland is the operative word, because the BJP has not been able to establish itself in Tamil Nadu, in Kerala, in other parts of Andhra Pradesh and Telangana. Yeah. So in Telangana, I mean, we have to wait for the final result and the vote share.
I would be very interested in knowing what the BJP's vote share has been in all these states. Absolutely. It will be interesting to see, and we'll keep bringing those numbers as and when they come in. But if you talk about South India की बात करें, तो what was the problem really as far as the BJP is concerned in South India? क्यों अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई? एक्चुअली बीजेपी को आप जब मार्क करें देखेंगे तो कर्नाटक में तो उसने अपना बेस बनाया है, लेकिन अभी तक उसने ना एक बेहतर पार्टनर खोजा है कहीं पर साउथ में, क्योंकि साउथ में पहले से भी बेस नहीं था उसका। AIDMK के साथ AIDMK के साथ उसका गठबंधन अभी हुआ। AIDMK की स्थिति अभी जहां तक है वहां पर का चुनाव जो आपने पहले भी देखा होगा, तो वो DMK और AIDMK के बीच में हमेशा मुकाबला चलता रहा है। अब जिसको भी साथ लेना है आज की तारीख में, या तो कांग्रेस को साथ जाना है तो इन दोनों के बीच किसी का साथ लेते हैं, या बीजेपी को साथ लेना होता है इन दोनों के बीच किसी का साथ लेते हैं। अगर हम कहें तो इस बार बीजेपी यह निर्णय करने में चूक गई कि उसको साथ किसका लेना था, क्योंकि उसने AIDMK का साथ लिया। हवा उस तरह से थी नहीं जो पिछली बार जैसे जयललिता का फैक्टर था, जयललिता का फैक्टर इस बार नहीं था, इस बार करुणानिधि नहीं थे। तो नतीजा क्या था कि यहाँ पर नए नेतृत्व के लोग रह रहे थे और उसमें DMK की स्थिति बेहतर थी, क्योंकि जो खास करके जो जयललिता के जाने के बाद जो AIDMK के अंदर में जो संघर्ष हुआ था उससे वहाँ के मतदाता थोड़ा सा परेशान थे, उसका लाभ DMK को मिल रहा था। तो AIDM हम कहेंगे कि बीजेपी ने कभी भी साउथ में उस हिसाब से अपना बेस सोचा ही नहीं, और उसने अपने को ठीक ठाक अपने हिंदी हार्टलाइन में ही अपने को सीमित रखा है उस ढंग से। केरला में वैसे इस बार अपॉर्चुनिटी था सबरीमाला के केस को लेके, लेकिन उसके बारे में अभी जिक्र करेंगे। उससे पहले चलते हैं नजीर हुसैन के पास। नजीर हुसैन, रियली the Congress or the UPA has done well in Kerala and Tamil Nadu, but barring that, even though you have the government in Karnataka, you don't seem to be doing well there in Karnataka, and as far as the Hindi heartland is concerned, the Congress has been wiped out. See, as far as Karnataka is concerned, I am from Karnataka. I am just trying to get the leads over there. In most of the places, I think the leads are say about 5,000, 10,000, 1,400, 1,800 and so on. Still we have to wait and see what will be the final result, because till now only about 4th or 5th rounds, 4-5 rounds are finished. There are about 7 to 8 rounds to go. So I think there may be changes in the final outcome of the seats in Karnataka. Nasir Hussain, but it doesn't seem so, because if you look at the numbers, the Election Commission is giving out those details. Even as we speak right now, there is a solid consolidation as far as the BJP is concerned. The lead is only increasing with every passing round. Maybe I'm a little surprised about Madhya Pradesh and Rajasthan, because these are the two big states which were expected to do well for the Congress party, especially because we have governments there, and the governments maybe there was last time, say there was only about 3 months time, then there was code of conduct and so on. Probably we were not in a position to push our agenda and to implement all those promises we made in the during the elections for the state. Had we had maybe a little more time, maybe a year or so after getting into power in these 3 states, probably we could have done better. But disappointing trends from Madhya Pradesh and Rajasthan for Congress. But when it comes to the other states like Bihar, Jharkhand, Uttar Pradesh, we are not expecting much. West Bengal, we are not expecting much. Okay. Kerala, as expectations are going. Okay. 3 states, Karnataka, Nasir Hussain, we'll come back to you. In the meantime, let's go across to Rohit Chahal, who's joining us from the BJP. Rohit Chahal, have the sweet boxes come out? Almost, but we are still waiting for the results, final results. But हम लोग जिस तरीके से एक पूरा जो मेहनत थी, क्योंकि कार्यकर्ता की एक लगातार मेहनत रही, एक्सपेक्टेड थे हमें रिजल्ट अभी जो रुझान आ रहे हैं वो लगभग रिजल्ट में आएंगे, क्योंकि जो एग्जिट पोल्स थे लगभग हमें ये था कि एग्जैक्ट रहेंगे। हमें उम्मीद पूरी थी कि 300 पार, अब की बार 300 पार, फिर से एक बार मोदी सरकार, क्योंकि लगातार जिस तरीके से डेवलपमेंट विकास की बात नरेंद्र मोदी जी ने की, और गरीबों तक, एक गरीब को लगा कि हाँ मैं प्रधानमंत्री के अंदर उन्होंने खुद अपने आप को देखा, और चाहे वो शौचालय हो, चाहे LPG सिलेंडर हो, चाहे आयुष्मान भारत के तहत हेल्थ इंश्योरेंस की बात हो, चाहे सड़कें हो, लगातार एक डेवलपमेंट पूरे देश के अंदर किया। और साथ साथ एक नेशनलिटी, जो नेशन फर्स्ट की जो फीलिंग, जो नेशनलिज्म की फीलिंग जो लोगों के अंदर आई,
और सबसे बड़ी बात यह है कि एक पॉजिटिव कैंपेन बीजेपी ने पूरे इलेक्शंस में किया। और सबसे बड़ी बात कि अगर आप देखें तो जो अपोजिशन था उनके पास, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास नरेंद्र मोदी जी एक मजबूत नेता थे, नेता भी थे, नीति भी थी, नीयत भी थी और निर्णय लेने की ताकत भी मोदी जी के पास थी। बट अगर अपोजिशन की बात करेंगे तो उनका नेता तक नहीं पता था। और जिस तरीके से नेगेटिव पॉलिटिक्स लगातार जो कांग्रेस पार्टी और अपोजिशन पार्टी करती रही, वो एक बहुत बड़ा कारण रहा इस रिपीट का। और जनता को लगा कि मोदी जी को जिस तरीके से एक मजबूत नेतृत्व मोदी जी ने दिया है, और मोदी जी कहीं ना कहीं गरीबों का खास करके और युवाओं का अगर आप बात करें, महिलाओं की बात करें, माओ को सम्मान देने की बात करें, एक बहुत बड़ा कारण मुझे लगता है ये जीत जो अब भारतीय जनता रोहित, पार्टी अगर आज के नतीजों की बात करें, आज के रुझानों की बात करें तो मध्य प्रदेश और राजस्थान से क्या आपको ऐसी उम्मीद थी, और क्या कोई ऐसे राज्य हैं जहां पर आपको लगता है आप और बेहतर कर सकते थे? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मैंने कहा कि हम लोग 120 ऐसी सीटें थी जहां पे पिछली बार जो एनडीए की अगर हम बात करें जो है, जहां पर हम पिछले बहुत कम मार्जिन से आ रहे थे, तो पिछले 2 साल के अंदर हमने 120 ऐसी सीटों पे बहुत मेहनत की। और हम लोगों को उम्मीद थी कि उत्तर प्रदेश के अंदर मीडिया कम कह रही थी, बट हमें भी लगता है जो फाइनल रिजल्ट आएंगे वो और अच्छे आएंगे। और जो खासकर जैसे अमेठी हो गया या फिर कन्नौज हो गया, ऐसी सीटों पे हम मुझे लगता है इस बार जीतेंगे। वेस्ट बंगाल हमें था कि और अच्छी सीटें हम आए करेंगे, और वेस्ट बंगाल में हमने किया। नॉर्थ ईस्ट की बात है, हाँ तमिलनाडु में हमें एक्सपेक्टेशन है थोड़ी सी कम सीटें, मुझे लगता है हमें एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी कम तमिलनाडु के अंदर। और रही बात जैसे और बाकी नॉर्थ ईस्ट के अंदर हमें पूरी उम्मीद थी कि हम लोग पिछली बार से भी अच्छा नॉर्थ ईस्ट के अंदर करने वाले हैं। और जो एक मैं कहूँगा कि मोदी जी को लेकर इंटरनेशनली भी अगर आप देखें, पूरे देश के अंदर नहीं विदेश के अंदर भी मोदी जी ने जिस तरीके से भारत का नाम, चाहे वो सियोल पीस प्राइज हो, चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड हो, चाहे रशिया ने सबसे बड़े ऑनर्स दिए हो, लगातार एक देश का नाम, और चाहे तो एक बहुत बड़ा एक कारण रहा कि जनता का भरोसा एक मजबूत नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में। और अमित शाह जी ने जो जिस तरीके से अमित शाह जी का नेतृत्व रहा, एक कहते हैं बूथ तक, मेरा बूथ सबसे मजबूत, तो 5 बूथों पे क्लस्टर बना के, शक्ति केंद्र बना के नीचे तक हमने एक बूथ मैनेजमेंट जो की अमित शाह जी के नेतृत्व में, और सारा कार्यकर्ता एक कह सकते हैं यूनाइट कैंपेन था, एकजुट हमारा ऑर्गेनाइजेशन था, वही एक परिणाम था। और एनडीए ने मजबूती के साथ एक मिलकर चुनाव लड़ा। रोहित, जिस तरह से आपने बूथ मैनेजमेंट भी किया, जिस तरह से कार्यकर्ताओं का मजबूत किया, जिस तरह से आप खुद बता रहे हैं कि बहुत मेहनत की गई, इस हिसाब से तो बीजेपी को खुद को 300 पार पहुंचना चाहिए था, जैसा कि मोदी कह रहे थे। लेकिन ये तो अभी रुझान जो हम देख रहे हैं वो 280, 285 तक ही सीमित है। मैंने कहा ना, देखिए अभी ये रुझान है, जब फाइनल रिजल्ट्स आएंगे तब आप देखेंगे अब की बार फिर से 300 पार जो हम उम्मीद कर रहे थे वो रहेगा 300 पार। क्योंकि जिस तरीके से बताया कि मेहनत जिस तरीके से मोदी जी ने जब से प्रधानमंत्री बने, एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली, लगातार देश के लिए, जनता के लिए सेवा कर रहे हैं। और हमारा जो मैनेजमेंट था, खास करके अमित शाह जी ने जिस तरीके किया, तो परिणाम आएंगे। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि अमेठी से लेकर कन्नौज तक ऐसी बहुत सारी जो इंपॉर्टेंट सीट्स हैं भारतीय जनता पार्टी इस बार जीतेगी। एक बड़ा आप सरप्राइज देखेंगे। मैं कहूँगा कि एक अंडर करंट नहीं, बहुत बड़ा एक सुनामी की तरह एक लहर थी, क्योंकि गरीब सबसे ज़्यादा, मैं कहूँगा, क्योंकि मैं अमेठी में था, 15 दिन आई वाज इन अमेठी, तो अमेठी के अंदर जो एक गरीब महिला थी, जहाँ पर घर नहीं था, आवास योजना के तहत आवास वहाँ पे मिला है। सबसे बड़ा इज्जत घर आज वहाँ पे महिलाओं को मिलकर एक सम्मान मिला है। सिलेंडर देके माँ के आंसू पहुँचने का काम मोदी जी ने किया है। तो ऐसी बहुत सारी योजना ज़मीन तक पहुँची हैं। और स्मृति ईरानी जी ने जिस तरीके से वहाँ मेहनत की, आप देखेंगे कि ऐसी बहुत सारी सीट्स हैं जहाँ पे बहुत ही सरप्राइजिंग रिजल्ट आएगा। जब फाइनल रिजल्ट आएंगे तो बीजेपी जो होगी अकेले 300 के पार रहेगी, और जो एनडीए रहेंगे लगभग आप मान के चलिए 375, 80 या 400 के आसपास जाएंगे। जी रोहित, बहुत ज्यादा जोर लगाया इस बार अमेठी पर, नतीजे फटाफट आने ही वाले हैं, उस पर भी नजर लगी हुई है। इस बीच लखनऊ चलते हैं, वहां से मुकुल श्रीवास्तव मौजूद हैं हमारे साथ। मुकुल जी बताएं, उत्तर प्रदेश को अगर देखा जाए तो क्या पिछली बार वाले नंबर कहा जा रहा था कि बीजेपी नहीं ले पाएगी, गठबंधन, महागठबंधन, मायावती, अखिलेश का जादू कितना चला? क्या वाकई में वोटर्स ने उनको एक्सेप्ट किया है कि नहीं किया है? नहीं, जैसा कि मैं पहले भी आपके कार्यक्रमों में कहता आया हूं कि चुनाव जो है वो बंद कमरों में बैठ करके हो जाने वाला खेल नहीं है कि 2 विरोधी दल के नेता मिले और बोले कि साहब हम आपके साथ हैं और हम लोग साथ साथ चुनाव लड़ेंगे। पर दोनों दलों के कार्यकर्ता आपस में वो सामंजस्य नहीं बना पाए, वोट ट्रांसफर नहीं हो पाया। और दूसरी बात यह है कि दुनिया बदल चुकी है। जो युवा हैं, जो आजकल के जो नए वोटर हैं, वो इन सारी चीजों से उकता गए हैं, ऊब गए हैं कि जाति की राजनीति हो, क्षेत्र की राजनीति हो, और इन सारी चीजों से आगे बढ़ करके उन्हें लगा कि ये आदमी डिलीवर कर सकता है। अखिलेश यादव जी की 5 साल सरकार रही और उससे पहले बहन मायावती जी की भी 5 साल सरकार रही।
लेकिन सरकार जाने के बाद सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति रही, पर इनके पास कुछ ठोस बताने को नहीं रहा। ये मुझे लगता है कि एक बड़ा कारण रहा और लोगों को लगा कि अब इन सारी चीजों से ऊपर हट करके, और इसीलिए जिसे बोलते हैं कि अहीर या दलित या जाटो या इस तरीके के भी जो लोग थे, वो सारे के सारे राष्ट्रवादी हो गए और इन सारी चीजों से ऊपर उठ करके उन्होंने वोट किया और उसका परिणाम आपके सामने। जी हितेश शंकर के पास चलते हैं अभी। हितेश, नेशनल सिक्योरिटी शायद कभी इतना बड़ा मुद्दा नहीं रहा है इस देश में, लेकिन लगता है कि इस मुद्दे को उठाकर बीजेपी काफी दूर गया है। देखिए, नेशनल सिक्योरिटी के साथ ही राष्ट्रवाद की भी बात हुई है कि नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे जो उठाए गए, इसका एक जो पक्ष छोड़ दिया जा रहा है कि भाजपा इन मुद्दों को लेकर, राष्ट्र से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर कैसे चली, उसके बरक्स उसको जो चुनौती देने के लिए सबसे ज़्यादा ताल ठोक रही थी वो कांग्रेस ने उन मुद्दों को कैसे लिया। आप देखिए 370 पर उनका जो रुख है, धारा 370 पर या अफस्पा पर जो रुख है, ये बताते हैं कि एक देश, उसकी सुरक्षा और उसकी अखंडता के लिए दो पॉलिटिकल व्यूज बिल्कुल अलग अलग हैं। ऐसे में लोगों को तय करना था कि वो कहाँ पर जाते हैं। ये खाली राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा नहीं था, देश की अखंडता, संप्रभुता, सेना का सम्मान और एक दृढ़ विदेश नीति, रक्षा नीति, इन सब की बात एक मिलीजुली बात थी जिसमें लोगों ने इसे देखा। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा, एक विमर्श बीच में उठा कि भाजपा ने राष्ट्रवाद का मुद्दा उठा के शायद बाकी मुद्दों को घुमा दिया, बिसरा दिया, ऐसे आरोप भाजपा पर लगे। परंतु गौर कीजिए कि इस चुनाव में बिजली, सड़क, पानी ये मुद्दे थे नहीं, इसलिए निश्चित ही ये राष्ट्र का मुद्दा, वो जो स्थिति पैदा हुई थी अचानक पैदा हुई थी और वो किसी का बनाया हुआ मुद्दा नहीं था। मगर उसके बाद देश कैसे रिएक्ट करता है और देश किसके साथ ज़्यादा जुड़ाव महसूस करता है, एसोसिएशन फील करता है, तो भाजपा ने वहाँ पर लीड उसे मिली है। और साथ ही ये भी मैं कहना चाहूँगा कि विधानसभा चुनाव, निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव, कॉरपोरेशन चुनाव, ये गली, सड़क, खड़ंजा, नल, पानी, ये मुद्दे हो सकते हैं, परंतु जब लोक और तंत्र की बात हो, तो इस देश की बात अगर होती है तो लोकसभा चुनाव में मुझे नहीं लगता कि राष्ट्र से जुड़े मुद्दों को गौण किया जा सकता है। ये बात इस लोकसभा चुनाव में बहुत अच्छे से परिलक्षित हुई है। जी हितेश, आपके पास लौटेंगे अभी कुछ ही समय में, बट बिफोर दैट लेट्स गो क्रॉस टू our newsroom where Vishal Daiya is standing by. Over to you, Vishal. Well, thank you, Frank. In fact, the leads which are coming in, and you were talking about the specific Hindi heartland states. So let's talk about states of Madhya Pradesh and Rajasthan, wherein BJP has a clear edge in the leads which we are getting right now. And joining me here in the newsroom is a panel of guests again, senior journalists. Let me first introduce you guys to them. We have with us Shipra Mathur from Rajasthan, a journalist who keeps a close watch on the political developments in Rajasthan. Then from Madhya Pradesh, we have Mr. Hemant Sharma, again specifically talking about Madhya Pradesh. Then Madhukar Dwivedi ji is here. We'll talk to him about Chhattisgarh and Madhya Pradesh, and Roshan God, in fact, for Uttar Pradesh, Uttarakhand and other North Indian states. So let's begin with Rajasthan. Shipra ji, राजस्थान 25 सीटें और इस वक्त जो रुझान आ रहे हैं 25/25 भारतीय जनता पार्टी। यही लग रहा है कि जो स्वीप था पिछली बार और स्वीप से स्वीप की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है राजस्थान। और इंटरेस्टिंगली जो 3-4 सीट बहुत सभी की तरफ से जो रुझान आ रहे थे शुरू के एग्जिट पोल्स में भी दिखा रहे थे कि 3-4 सीटें बहुत क्लियर कट शायद कांग्रेस को जा सकती है, और अभी जो रुझान नजर आ रहे हैं वहां पर भी बीजेपी लीड में नजर आ रही है। जी, तो मतलब जो लीड है बीजेपी की वो पुख्ता होती जा रही है, लग तो ऐसा ही रहा है। जी, राउंड द राउंड। हेमंत जी, मध्य प्रदेश 29 में से 28 भाजपा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज की दो बहुत ही बड़े नेता पार्टी के, भोपाल में दिग्विजय सिंह और गुना में ज्योतिरादित्य सिंधिया 25 से 50,000 के बीच में पीछे हैं। जी, ये एक बहुत बड़ी बात है। सिर्फ कमलनाथ, मुख्यमंत्री कमलनाथ जो हैं, उनके बेटे नकुलनाथ सिर्फ पूरे प्रदेश में छिंदवाड़ा से वो 25,000 की लीड पे आगे चल रहे हैं, बाकी सारे लोग, सारे नेता कांग्रेस के पीछे चल रहे हैं। जी, तो मध्य प्रदेश के बारे में डिटेल में और बात करेंगे, लेकिन मधुकर जी, मध्य प्रदेश में जिस तरह से विधानसभा चुनाव का जो नतीजा आया था और अब जो लोकसभा चुनाव में जो रुझान आ रहे हैं, तो आपको लगता है कि जो जिस तरह की उम्मीद थी भारतीय जनता पार्टी को, जो बदलाव उन्होंने किया, चाहे उम्मीदवारों में किया हो, चाहे नेतृत्व में किया हो, वहाँ उसका नतीजा ये है?
देखिए, दोनों पार्टियों के बीच बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था, सीटों का भी अंतर नहीं था, वोट्स का भी अंतर नहीं था। तो ये तो तय था कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति वही होगी जो आज हम देख रहे हैं। जी। कांग्रेस को जरूर एक सदमा कह सकते हैं कि उनकी सरकार है, चार पाँच महीना हो गया सरकार चलते हुए, तो इतना कांग्रेस का पराभव हो जाएगा और कांग्रेस बिल्कुल एक तरह से डूबती नजर आएगी मध्य प्रदेश में। उनके बड़े नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह भी पीछे चल रहे हैं। हो सकता है सिंधिया जी उसको अपनी सीट में वोट का इजाफा करके जीत की ओर बढ़ जाए, लेकिन दिग्विजय सिंह जी का तो बड़ा साफ दिख रहा है कि 45,000 मतों से पीछे हैं। मुझे नहीं लगता कि भोपाल में दिग्विजय सिंह जी उसको रिकवर कर लेंगे। हाँ, सिंधिया जी चूंकि अब मुझे नहीं मालूम, अंतर थोड़ा सा भी कम है, तो लेकिन हो सकता है, कई राउंड्स की अभी और गिनती होनी उम्मीद बाकी की जानी चाहिए। उम्मीद तो मध्य प्रदेश पर अभी दोबारा आएंगे, लेकिन रोशन, उत्तर प्रदेश पर सबकी नजर रहती है और उत्तर प्रदेश की बात करें तो जिस तरह का बार बार जो डिस्कशंस हो रहे थे जो मतगणना से पहले और चुनाव के दौरान भी, उसमें यह माना जा रहा था कि 73 का आंकड़ा जो 2014 में भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों को मिला था, उसे मेंटेन करके रखना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन अभी जो रुझान आ रहे हैं उसके मुताबिक लगभग 60 तक पहुंचती लग रही है गाड़ी, तो कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। और सपा बसपा का जो गठबंधन था उसका जो कैलकुलेशंस, जो गणित उनका था, वो शायद नहीं चल पाया। देखिए, इसके दो पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि जब ये गठबंधन बना था 3 दलों का, तो लग रहा था कि इनका गठबंधन 40 से 45 सीटें ले जाएगा, तो वो सफल नहीं हुआ। और ऐसा लग रहा था कि बीजेपी शायद 20-25 पे रुके, तो वो नहीं हुआ और 55-60 के बीच में रहेगी। तो जब भी शुरुआती ट्रेंड जो अभी आए हैं उसमें करीबन 18-19 सीटें हैं जहां बीजेपी को नुकसान होता दिख रहा है, और ये सीटें वो हैं जहां मुस्लिम बाहुल हैं, जैसे आपकी सहारनपुर है, आपकी कैराना है, आपकी संभल है। तो इन सीटों में बीजेपी को नुकसान होता दिख रहा है। करीबन 18-19 हैं अभी, हो सकता है कि वो 20 या 21 के आसपास पहुंचे। तो वहां पे जो जातीय है वो तो ठीक है, बीजेपी के पक्ष में नहीं था। सिग्निफिकेंटली ये सब सीटें वो हैं जिनमें पहले चरण में चुनाव हुआ था। बिल्कुल पहले चरण में हुआ था। मुस्लिम बाहुल हैं जिनमें करीबन अगर दलित को और मुस्लिम को मिला लिया जाए तो 50% प्लस हो जाता था। और पिछले चुनाव में जब हमने देखा था कि अगर हम बसपा और सपा का वोट बैंक को मिला देते तो शायद उस समय भी ये जीतते, पर उसमें ये अलग अलग लड़े तो बीजेपी जीती थी। तो ये मुझे लगता है कि अभी हम जब आगे बढ़ेंगे तो ये इसमें तो और मतलब जो कोरे कागज पर जो जिस तरह से वोट बैंक की गिनती की गई थी वो शायद उस तरह से उतरी नहीं मैदान में, अगर बसपा और सपा के लिहाज से बात करें। राजस्थान पर दोबारा जाते हैं और शिप्रा जी, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इधर मैप की तरफ आएं, क्योंकि एक मैप से समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पर राजस्थान का जो मैप है कि वो इलाके जहां पर शायद कांग्रेस को उम्मीद थी, या जो कांग्रेस का जैसे कहा जाए कि जो बड़े नेता उनका गढ़ है, टोंक, सवाई माधोपुर, जो मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के उनका, और जोधपुर की सीट जहां पर मुख्यमंत्री के बेटे स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन दोनों ही सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार पीछे चल रहे हैं, बल्कि जो जोधपुर में तो लगभग अंतर इतना बड़ा है कि शायद अब उसे पाटना मुश्किल हो। देखिए, जोधपुर की जो सीट थी, क्योंकि ये बहुत अहम सीट इसलिए बन गई थी क्योंकि वैभव गहलोत जो हैं वो गजेंद्र सिंह शेखावत जी के अगेंस्ट में खड़े थे। लेकिन गजेंद्र जी का पिछला परफॉर्मेंस अगर हम देखें 2014 का परफॉर्मेंस, तो उन्होंने करीब 4 लाख वोटों की शिकस्त दी थी चंद्रेश कुमारी को। तो लोकसभा के चुनाव के लिहाज से अगर हम देखें तो वहां पर और 25 की 25 सीटें क्योंकि राजस्थान में भाजपा के खाते की ही थी, तो बीजेपी का जो ट्रेंड है वो ये है कि लोकसभा में हमेशा से बीजेपी को बढ़त मिलती रही। हालांकि इस बार खास ये था कि पूरा, क्योंकि सरकार जो है वो कांग्रेस की है, तो पूरा प्रशासनिक अमला और खास तौर से गहलोत जो सीएम है उनकी साख जो है वो जुड़ी हुई है इस सीट से, तो उन्होंने बहुत अपने आप को झोंका था इस सीट के लिए। लेकिन फिलहाल जो ट्रेंड नजर आ रहे हैं और जो ग्राउंड रिपोर्ट्स भी जो हमने जानी उसमें भी लगातार ये नजर आता है कि एज जो है वो गजेंद्र सिंह जी को मिलने वाला है। वो सब ताकत लगाने का बेनिफिट फायदा हो नहीं पा रहा है। बल्कि आप सही कह रही हैं, जब हम पहुंचे थे राजस्थान में चुनाव प्रचार के दौरान तो शुरू के 10 दिन मुख्यमंत्री सिर्फ और सिर्फ जोधपुर में पाए गए, यहाँ बाकी इलाकों में वो प्रचार के लिए भी मौजूद नहीं थे। इस बात का थोड़ा क्रिटिसिज्म भी, मतलब जनता के मानस में थोड़ा सा मुझे लगता है कि एक मैसेज भी गया कि अपने, और उन्होंने बहुत मुखर तौर पर इस बात को स्वीकार किया कि एक पिता के तौर पर बेटे को सपोर्ट करना कोई गलत बात नहीं है। तो ये एक मैसेज शायद जनता में गया हो कि अपने
बेटे को लेकर इतना ज्यादा जो मतलब रुझान जो इंक्लिनेशन है वो शायद नहीं है। दूसरी सीट आपने कही टोंक सवाई माधोपुर। टोंक सवाई माधोपुर की सीट, हालांकि अगर आप असेंबली इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस सीट पर कांग्रेस का बोलबाला असेंबली में रहा और ये माना जा रहा था कि अभी जो एग्जिट पोल्स भी है वो भी ये कहते थे कि टोंक सवाई माधोपुर में जो रुझान है वो लगेगा कि शायद कांग्रेस के फेवर में जाएगा, लेकिन अभी जो ट्रेंड्स नजर आ रहे हैं वो फिर से ये जो सीट है वो बीजेपी की तरफ मुड़ती हुई नजर आ रही है। तो मतलब मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों के लिए कोई अच्छी खबर नहीं आ रही है जहां तक रुझानों की बात है, और कांग्रेस के लिए ओवरऑल तो बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि 25 में से 25 सीटें 25 सीटों पर वो पीछे चल रही है, 24 पर बीजेपी आगे है। एक सीट की और बात कर लेते हैं, नागौर अगर देखें तो आरएलपी जो हनुमान बेनीवाल जो है, और जाट वोटों की जहां तक बात होती है, और यहां पर जो दूसरे नंबर पर है वो ज्योति मिर्धा है कांग्रेस की। तो ये अगर इस वोट बैंक के नजरिए से अगर देखें तो इधर हमने देखा कि जो गुज्जर मीना वोट बैंक जो था जिसकी बात कर रहे थे हम, सचिन पायलट के साथ था, वो इधर नहीं मिल पा रहा है। उधर जोधपुर में कांग्रेस को जो है गहलोत का भी कोई फायदा नहीं हो पा रहा है उनके मुख्यमंत्री होने का, और इधर जाट वोट बैंक की बात करें तो वो भी शायद कांग्रेस के पास नहीं है। देखिए, नागौर वाली सीट की खास बात इस बार ये है कि पहली बार भाजपा ने यहां पर आरएलपी के साथ गठबंधन किया, यानी वो कुल मिलाकर 25 सीटों में से 24 पर उसने अपने कैंडिडेट्स खड़े किए हैं। और नागौर की सीट इतनी अहम मानी जा रही थी क्योंकि जो पूरा इलाका है जो शेखावाटी वाला बेल्ट है, इसको इन्फ्लुएंस करने की ताकत दोनों ही पार्टियों को लगा कि इसमें ताकत है। और गहलोत ने भी कोशिश की थी कि आरएलपी के साथ उन्होंने बातचीत शुरू की थी, लेकिन फाइनल गठबंधन जो हुआ वो भाजपा के साथ में हुआ। तो इसको निश्चित तौर पर जो आरएलपी का जो एक वोट बैंक है उसका फायदा तो इस सीट को निश्चित तौर पर मिलेगा। कम से कम हनुमान बेनीवाल एक सीट ले जा सकते हैं, और ये एक आंकड़ा हम वीडियो वॉल पर देख पा रहे हैं, इसके बारे में बात करते हैं। 59% जो वोट शेयर है वो भारतीय जनता पार्टी के पास है राजस्थान में, 17% अदर्स यानी कि हम आरएलपी और बाकी जो बीएसपी पार्टियों में बात करते हैं, 35% कांग्रेस के पास है। तो 35% वोट शेयर है, लेकिन सीटें एक भी नहीं आती दिखाई दे रही हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और मैंने जो शुरुआत से भी हम लोग राजस्थान की जब भी रेफरेंस आता है तो एक बात बहुत मुखर तौर पर नजर आती है राजस्थान के बारे में कि राजस्थान विधानसभा में अलग तरह से रिएक्ट करता है और लोकसभा के चुनाव में हमेशा से अलग तरह से रिएक्ट करता है। और वहां की जनता जो है वो आप बात भी करेंगे तो बहुत क्लियर कट एक फोकस के साथ में काम करती है कि लोकसभा में हमें अगर भाजपा के फेवर में करना है तो जैसे आप बाड़मेर की सीट देखें, बाड़मेर की जो सीट है वो बहुत इंटरेस्टिंग सीट हो गई थी क्योंकि यहाँ पर मानवेंद्र सिंह जो है जसवंत सिंह के बेटे, और जसवंत सिंह जी का क्योंकि थोड़ा सा आपस में मनमुटाव जो है वसुंधरा जी के साथ रहा, उनको भाजपा से टिकट नहीं दिया गया, वो इंडिपेंडेंट की तरह लड़े, और मानवेंद्र जो है वो फिर कांग्रेस पार्टी में आ गए और असेंबली इलेक्शन में भी वो खड़े हुए, लेकिन यहाँ पर वो फिर से कांग्रेस के बूते खड़े हुए और ये माना जा रहा था कि शायद जो है वो कांग्रेस के हिस्से में आ सकती है। लेकिन अभी जो ट्रेंड नजर आ रहे हैं इसका मतलब जनता जो है वो इस बात को अस्वीकार करती है कि अगर आप एक लॉयलिस्ट हैं किसी पार्टी के और सिर्फ इसलिए खफा होकर आप चले गए तो उसको शायद रिजेक्ट करती है जनता। तो मतलब आपसी अनबन के चलते अगर आपने पार्टी छोड़ी तो उसका जो है नुकसान आपको भुगतना पड़ेगा। जो है बिल्कुल जी। तो ये राजस्थान की बात थी, और अब मध्य प्रदेश पर एक नजर डाल लेते हैं, और मैं हेमंत जी से गुजारिश करूंगा। हेमंत जी, मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो ये मध्य प्रदेश का मैप है हमारे पास, 29 सीटें हैं, और लगभग जैसी स्थिति राजस्थान में देखने को मिल रही थी वैसी स्थिति यहां भी देखने को मिल रही है। राजस्थान में 25 में से 24 बीजेपी के पास थी, यहां 29 में से 28 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। बिल्कुल, और एक बड़ी चीज इसमें और बताऊं कि ये 28 सीटें हैं, इसमें से कम 12 से 13 सीटें ऐसी है जिसमें भाजपा के प्रत्याशी भी 1 लाख से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। जी, तो मार्जिन जो 1 लाख जो किसी भी उसे पाटना बिल्कुल, और बाकी जो हैं वो भी 50-60 हजार से ऊपर चल रहे हैं। और आप देखेंगे कि जो पार्टी के कांग्रेस के मध्य प्रदेश के बड़े दिग्गज हैं, जो सिंधिया हो, दिग्विजय सिंह हो, अरुण यादव जो पार्टी अध्यक्ष थे, ये सारे लोग, अजय सिंह हो, ये चारों लोग जो हैं वो लगभग सिर्फ सिंधिया को आप इसमें से छोड़ दें जो कि 25,000-27,000 से अभी पीछे चल रहे हैं। एक उन्हीं से उम्मीद जो है बनी हुई है कि वो शायद कवर अप कर जाए, वो जीत की ओर आगे बढ़ सकते हैं। बाकी जो जितने भी कैंडिडेट हैं वो बहुत मुश्किल अगर आते हैं तो भाई कोई चमत्कारी होगा अगर दिग्विजय सिंह जीतते हैं, कोई चमत्कारी होगा अगर अर्जुन उनके बेटे अजय सिंह जीतते हैं,
तो ये मतलब जो अंतर है वो काफी है। बहुत बड़ा। लेकिन एक अंतर है मध्य प्रदेश और राजस्थान में, अगर कांग्रेस के नजरिए से देखें, और वो अंतर ये है कि जहां राजस्थान में मुख्यमंत्री अपने बेटे को नहीं जिता पा रहे हैं, बहुत पीछे चल रहे हैं जो शुरुआती रुझान है, यहां मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे जो छिंदवाड़ा से खड़े थे, इकलौती सीट जहां पे कांग्रेस आगे चल रही है वो ये है। यहां पर शायद जो कमलनाथ पूरे प्रदेश में नहीं कर पाए वो यहां शायद कर पाए। कमलनाथ सिर्फ अभी तक वहां 2 बार हारे हैं और सारे नेताओं को उन्होंने अभी तक हराया है वहां कमलनाथ ने। तो विधानसभा हो जिस तरीके से उन्होंने एरिया, मतलब ये छिंदवाड़ा कमलनाथ के कारण जाना जाता है। इंडस्ट्री विकास की जो बात करें, विकास मुद्दा नहीं है, लेकिन आप देखेंगे छिंदवाड़ा में सिर्फ विकास मुद्दा है। जिस तरीके से बिल्कुल एक अननोन सी जगह को कमलनाथ ने जब वहां पहुंचने के बाद पहला चुनाव लड़ा, उसके बाद लगातार 7-8 चुनाव लड़े, जिस तरीके से उस जगह को डेवलप किया उन्होंने, आज सारी इंटरनेशनल फैसिलिटीज वहां पे मिले, तो एक सीधा कनेक्ट जो है कहीं ना कहीं वो सीधा वोटर के साथ जो उन्होंने जोड़ा, उसका एक बड़ा फायदा वहां पे हुआ है कि उनके बेटे जो हैं वो मतलब अपना गढ़ बचाने में कामयाब रहे, लेकिन कांग्रेस को कोई बेनिफिट नहीं। उधर वीडियो वॉल पे हम नजर डालें अगर हेमंत जी, तो देखिए 58% वोट शेयर बीजेपी के पास है और 35% कांग्रेस के पास है। लगभग राजस्थान जैसी स्थिति है। बिल्कुल। और जहां राजस्थान में कांग्रेस के हिस्से में एक भी सीट आती नहीं दिख रही, यहां मध्य प्रदेश में एक छिंदवाड़ा जो कि गढ़ है कमलनाथ जी का, वहां पर उनको बढ़त है और 7% वोट शेयर अदर्स के पास है। तो 35% वोट शेयर के बावजूद सिर्फ एक ही सीट पर बढ़त है। बिल्कुल। एक और बहुत महत्वपूर्ण इसमें ये जो आप देख रहे हैं, ये पश्चिमी मध्य प्रदेश का एरिया है पूरा, बिल्कुल। और कांग्रेस की जो विधानसभा में सरकार बनी थी वो सिर्फ इस एक एरिया के कारण सरकार, वहां बहुत बढ़त मिली है। लेकिन यहां पे बिल्कुल इस बार जो है कांग्रेस पूरी तरह साफ होती नजर आ रही है। एक भी सीट यहां से कांग्रेस जो है जीती हुई अभी तक, कम से कम जो लीड, सबसे छोटी लीड भी है। तो मतलब जिस तरह से राजस्थान में था कि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में जनता ने बिल्कुल फर्क साफ और जो लहर की जो बात हो रही थी, जो अंडर करंट जो कि जिस बात हो रही थी, ये सिर्फ और सिर्फ ये सीधा अंडर करंट है। एक वेव है जो कि जिसने ऐसे कैंडिडेट जो कि लग रहा था कि जो चुनाव जीतेंगे, बहुत अच्छे कैंडिडेट, साफ छवि वाले कैंडिडेट, उनको भी बिल्कुल साफ कर दिया। ये इंदौर एक भोपाल की सीट पर दोबारा आते हैं। भोपाल की आप बात कर रहे थे, भोपाल की सीट को जो है मतलब बिल्कुल वीआईपी कॉन्स्टिट्यूएंसी जैसे आपकी बात बन गई थी, क्योंकि एक तरफ दिग्विजय सिंह थे, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं मध्य प्रदेश के, और दूसरी तरफ से साध्वी प्रज्ञा सिंह है। लेकिन जिस तरह के रुझान आ रहे हैं, उस रुझानों के चलते लगभग 45,000 से 50,000 वोटों का अंतर है और दिग्विजय सिंह काफी पीछे। आपको लगता है कि निकल चुकी है सीट कांग्रेस? 45,000 से पीछे। अब मैंने वही कहा था, जैसे अब मैंने पहले भी बताया कि कोई चमत्कार है, अब यहाँ पे परिणाम बदल सकता है। 45,000 की जीत को कवर करना, लीड को कवर करना बहुत मुश्किल वो है। लेकिन चूंकि ये सीट इस तरह की है कि कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी उसमें जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी हैं वो पूरी तरह माइनॉरिटी डोमिनेटेड हैं जी। 3 कॉन्स्टिट्यूंसी उसमें इस तरह की, वहां के रिजल्ट अभी किस तरह आते हैं, वहां की पेटियां खुली है नहीं खुली है, वहां की काउंटिंग हुई है नहीं हुई है, ये उस पर भी डिपेंड है, क्योंकि उनका वोट का फ्लक्चुएशन जो है मार्जिन का वो कम ज्यादा हो रहा है। वो कभी 3,000 कम हो रहे हैं, कभी 5,000 ज्यादा हो रहे हैं, फिर 4,000 कम हो रहे हैं। तो ये एक चल रहा है। तो पिछले काफी देर से हम उसको वॉच भी कर रहे हैं, तो वो 35 से 45 के बीच में लगातार उनका चल रहा है। लीड आगे भी नहीं बढ़ रही है, लीड पीछे भी नहीं आ रही है। तो मतलब अभी भी कुछ जैसे कहा जाए कुछ चरणों की काउंटिंग बाकी है, लेकिन 45,000 की लीड कोई कम मामूली बहुत बड़ी लीड, अगर वो करेंगे तो बड़ा चमत्कार होगा। और खासतौर पे मध्य प्रदेश में जिस तरह के नतीजे हमें आते रहे हैं। हम मधुकर जी को भी लेकर आते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। यहां जो बात कर रहे थे, जैसे हेमंत जी कह रहे थे मधुकर जी के 3 बड़े दिग्गज नेता अगर मोटे तौर पे देखें मध्य प्रदेश में, 4 अगर बात कर लें, अर्जुन सिंह के बेटे की भी बात करें तो कमलनाथ, अर्जुन सिंह के बेटे दिग्विजय सिंह जी और उधर सिंधिया। अब इन सब चारों में बात करें तो सिर्फ कमलनाथ लगता है कि अपना गढ़ बचाने में कामयाब हुए हैं। हालांकि मुख्यमंत्री के तौर पर अगर देखें तो उनके लिए भी ये उतनी बड़ी हार होगी जितनी बाकी तीनों नेताओं के लिए होगी, लेकिन अंदरूनी लिहाज से देखें तो शायद कमलनाथ का कद बड़ा हो गया। लेकिन क्या राज्य सरकार जो नई बनी है और जो कि जिसके पास क्लियर मेजॉरिटी नहीं है, क्या वो ये इस हार का झटका झेल पाएगी? मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस को एक तरह से पुनर्विवेचन करना पड़ेगा कि कहाँ उनसे चूक हुई। लेकिन शर्मा जी बिल्कुल सही कह रहे थे कि अगर आपके हाथ से मालवा निकल गया तो समझिए पूरा मध्य प्रदेश आपके हाथ से निकल गया जी। विंध्य की स्थिति भी देखें, विंध्य में पिछला जो विधानसभा का चुनाव हुआ, विंध्य में बीजेपी को बहुत अच्छी सीटें मिली। रीवा एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहाँ उम्मीद थी कि एक सहानुभूति मिलेगी एक नौजवान प्रत्याशी को, लेकिन वहाँ भी लग रहा है अजय सिंह खुद हार के कगार में हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अब कांग्रेस पार्टी कोई जश्न मनाने की स्थिति में पहुंच जाए। हाँ, उनको
आत्मलोचन करना पड़ेगा कि आखिर चूक कहां से हुई, गलती कहां से हुई और इस गलती को कैसे सुधारा जाए भविष्य में। जी, तो मतलब बिल्कुल साफ है फ्रैंक और सोनिया, ये यहाँ अगर राजस्थान और मध्य प्रदेश की बात करें तो बिल्कुल नज़ारा बिल्कुल साफ है। 25 में से 24 सीटें राजस्थान में और 29 में से 28 सीटें मध्य प्रदेश में, और जो वोट परसेंटेज है, वोट शेयर है, वो भी लगभग एक जैसा है दोनों ही प्रदेशों में। राजस्थान में 59% और मध्य प्रदेश में 58%। कांग्रेस के हाथ से लगता है इन दोनों प्रदेशों में बाजी निकल चुकी है। बहुत ही शॉकिंग होगा विशाल एक तरह से कांग्रेस के लिए, क्योंकि नई नई सरकारें बनी थी इन राज्यों में और उम्मीद कर रहे थे कि इसका वो फायदा उठाकर जनादेश अपने फेवर में कर लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और जो आंकड़े आ रहे हैं, जो रुझान आ रहे हैं, उससे भी साफ पता चलता है कि नहीं हो रहा। 542 सीटों के जो आंकड़े आपके सामने हैं, 345 पर एनडीए आगे चल रही है और यूपीए 92 पर आगे चल रही है। अदर्स जो हैं वो 105 पर आगे चल रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के नासिर हुसैन और साथ ही बीजेपी के नुपुर शर्मा भी मौजूद हैं। नासिर जी, आपके पास आना चाहूंगी कि क्या हुआ राजस्थान में, क्या हुआ मध्य प्रदेश में, और अगर अमेठी की बात की जाए तो राहुल गांधी पीछे चल रहे हैं, भोपाल की बात की जाए तो दिग्विजय सिंह पीछे चल रहे हैं। देखिए, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कुछ 4-5 महीने पहले हमारी तीनों जगह हमारी सरकारें आई, और जिस तरह से हम लोगों ने वादे किए थे उनके लोगों के साथ, तीनों स्टेट में 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर हम लोगों ने लोन वेवर अनाउंस किया, और लोन वेवर कई लोगों को गया भी। खासकर मध्य प्रदेश में 17 लाख फार्मर्स को लोन वेवर का लाभ पहुंचा। मुझे लगता है कि जिस तरह से हम लोगों को मार्केटिंग करना था, ये जितने भी इश्यूज हम लोगों ने 4-5 महीने में, हालांकि 5 महीने मतलब जो उन्होंने 1-2 महीने तो इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट ही आ गया था, टाइम कम मिला हो, लेकिन टाइम कम मिलने के बावजूद जितना भी हम लोगों ने काम किया था उसकी सही मार्केटिंग हम लोगों ने नहीं की, और सही तरह से हम लोगों ने जितने भी इश्यूज़ को वहाँ पे एनडीए रेस कर रही थी या बीजेपी रेस कर रही थी, उसको हम लोग शायद काउंटर कर नहीं पाए। अगर 1 साल 1.5 साल का वो शायद सरकारों को मिला होता, क्योंकि 15 साल के बाद 2 जगह सरकारें आई थे, एक जगह जो है 5 साल के बाद सरकार आई थी। आज दोनों जगह मैंडेट जो है उनमें बहुत ज़्यादा अंतर का नहीं था, बट फिर भी जो है 3 जगह हम लोगों ने जीता था। थोड़ा बहुत और अच्छे से प्रोपेगेंडा करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, इस इश्यूज़ को फाइट करते हैं, लोगों तक लेके जाते हैं, खासकर नया स्कीम को लेके जाते हैं और फार्म लोन वेवर स्कीम लोगों तक लेके जाते हैं। तो मतलब मुझे लगता है लेकर जाता, क्या राहुल गांधी वहां पर आते और ज्यादा सभाएं करते, क्या प्रियंका गांधी वहां पर नहीं आई, क्या ये एक वजह रही? प्रमोशन में किसने गड़बड़ की? नहीं, देखिए, प्रमोशन तो स्टेट गवर्नमेंट को करना पड़ता है, स्टेट में जो यूनिट्स होते हैं उनको करना पड़ता है। जो केंद्रीय नेतृत्व होता है वो एक पॉलिसी सेट करते हैं, ब्रॉडली जो है एक डायरेक्शन, एक पॉलिसी इनिशिएटिव उनको लेके देते हैं कि भाई इस लाइन पे आपको काम करना है करके। और वहाँ पे लोगों, देखिए राहुल गांधी जी जाएंगे भी तो 2 बार जाएंगे, 5 बार जाएंगे, 10 बार जाएंगे, उन्होंने गया भी। और जिस तरह से लोन वेवर को अनाउंसमेंट के टाइम पे उन्होंने छत्तीसगढ़ में भी गए, मध्य प्रदेश में भी गए, उन्होंने जाके बोला भी। लेकिन राहुल गांधी जी पूरे देश को भी देखना था, पार्लियामेंट इलेक्शंस भी आ रहे थे, वो जाके सिर्फ 3 स्टेट में घूम नहीं सकते थे। अब वहाँ पे जो स्टेट की जो लीडरशिप है, मुख्यमंत्री हैं और भी जो कांग्रेस की जो ऑर्गेनाइजेशनल लीडरशिप है, जो मुख्यमंत्री ने जो अनाउंस किए तीनों स्टेट में, उनको लेके लोगों तक जाना था, लोगों में प्रचार करना था। मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत जैसे ही जीतने के बाद थोड़ा हम लोगों में थोड़ा कॉम्प्लिसेंसी आ गई थी, थोड़ा और मेहनत करके इस चीज़ों को ले जाते तो शायद बेहतर रिजल्ट होता। जी, और साथ ही नुपुर शर्मा भी हैं बीजेपी की, तो ये बताएं नुपुर जी कि क्या उत्तर प्रदेश में आप लोगों ने अखिलेश यादव के सामने कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नहीं रखा? क्या वजह रही कि आप 80 पर 80 नहीं जीत सकते हैं क्या? नमस्कार आपको और सभी दर्शकों को। आप ये समझिए कि जो भी रुझान दिख रहे हैं ये बहुत पॉजिटिव है, बहुत होपफुल है, और हाथ जोड़ के सर झुका के अगर 2 घंटे तक यही नतीजे रहे तो जनता जनार्दन को 130 करोड़ की स्ट्रॉन्ग इंडियन पॉपुलेशन को हमारा बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा। वैसे भी रहेगा कुछ भी नतीजे रहे। आपने सवाल पूछा मुझसे उत्तर प्रदेश के लिए, मैं इतना कहना चाहती हूँ कि वो लोग जो एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखते थे, एक दूसरे को गाली गलौज करते थे, वो महामिलावटी लोग जब आपस में आ जाते हैं,
सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका कोई देश को लेके विजन नहीं है। उनका बस एक विजन और एक ऑब्जेक्टिव है, मोदी हटाओ। देश की गरीब जनता के लिए, देश की महिलाओं के लिए, देश के युवाओं के लिए क्या काम करेंगे, कार्य करेंगे, ये किसी ने नहीं साधा। बस ये है मोदी हटाओ। किसी भी प्रेस वार्ता में, किसी भी रैली में मोदी हटाओ। आज की देश की जनता बहुत होशियार है। नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व ऐसा रहा है, खुद गरीबी से जूझ के जो 3 बारी मुख्यमंत्री बने अपनी खून पसीने की मेहनत से, उसके बाद आके यहाँ पे प्रधानमंत्री बने 2014 के अंदर पूर्ण बहुमत से। 133 उन्होंने ऐसी नीतियां सिर्फ लागू नहीं करी, इम्प्लीमेंट भी करी। और वो लास्ट माइल बेनिफिशियरी, वो गरीब घर जिसके इज्जत घर बना, जिसको सर पे छत मिली, जिसका जनधन अकाउंट खुला, जिसके यहाँ LPG और सिलेंडर पहुंचा, जिसके यहाँ बिजली पहुंची, जो करीबन 7-8 दशक इंडिपेंडेंस के बाद लोगों के 18,000 साढ़े 18,000 गाँव के अंदर बिजली तक नहीं पहुंची थी। जब उसकी पूछ होने लगी तो उस गरीब इंसान को, उस युवा को, महिला को ये आश्वासन हुआ, उस किसान को आश्वासन हुआ कि विकास भी हो सकता है और ओवरनाइट हमारी जिंदगी भी बदल सकती है। आज जो रुझान दिखने को मिल रहे हैं, ये प्रो इनकम्बेंसी रुझान है और ये तमाम महामिलावटी लोगों ने सारी मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री लगा ली ये दिखाने के लिए बस मोदी हटाओ, और कोई विजन एजेंडा नहीं था। लेकिन उनके ऊपर भी अगर ये रुझान रहे 2 घंटे और तक और ये नतीजों में बदले, तो आप लगा लीजिए कि जनता ने क्या अपना नतीजा दिया है। ये रिजाउंडिंग स्लैप कहूंगी मैं, क्योंकि ये जनता जिसको आपने एक हैव नॉट, अंडर प्रिविलेज, नॉन एंटाइटल समझ के रखा हुआ था, ये जनता जिसको आपने गरीबी रखा 7 दशक तक, आपने लूट मचाई अपने आप को राजा समझ के, उन्हें प्रधान सेवक चाहिए, उन्हें ऐसा नेता चाहिए जो उनकी बात सुने, जो आंसरेबल हो, रिस्पॉन्सिबल हो और अकाउंटेबल भी हो। मैं इतनी बात ही कहूंगी। और साथ में मुझसे पहले आपने कांग्रेस के प्रवक्ता का रुख किया, मैं एक बात कहना चाहती हूँ भाई साहब, राजस्थान से मेरा भी लिंक है, जरा एक बात सुनिएगा मेरी। जब 7,200 करोड़ के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो पूर्व की राज्य सरकार छोड़ के जाती है, आप उस पर रोक लगाते हैं तो जनता जवाब देगी। जब आप लोग कहते हैं कि हमने किसानों को इतना फायदा किया, आपने नकली बेनिफिशियरी बनाए थे राजस्थान के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर, तो आपने जो 1.5 लाख के अगर किसी का अगर डेप्ट है, Nupur Sharma, I think we can leave that for another time. 1.5 रुपए की अगर आप लोन माफी करेंगे तो वो जनता भी जवाब देगी। Nupur Sharma, there are 5 more years really to talk about that, and I'm sure the Congress will come up with its answers in the next 5 years. But let's talk about the BJP now, because the BJP clearly looks well and set, is running away with this election. So it's a happy moment for you. I can see a smile on your face as well. So what is it that worked for the BJP this time around? Is it the central government schemes? Is it the Modi magic? Or was it a combination of both? This is not a Modi wave, this is a Modi tsunami. Try and understand, a lot of people who have been trying to relegate this to a Tina factor. This is not a Tina factor. If this actually culminates into an actual result, in the next 1 hour I think we'll be sure, then you need to understand this is a Mitoa factor. Modi is the only alternative. It is the relentless hard work and pursuit of the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, who has actually struggled with being from a very modest background personally, who knows what it feels like to live in poverty and has thereby delivered to the last mile beneficiary and to the relentless hard work of our National President Shri Amit Shah ji and to the crores of Karyakartas, his booth level management, Panna Pramukh management, per booth, people were divided per page in a polling station, Shakti Kendras, and galvanizing the support of even last mile beneficiaries of the 133 rural upliftment schemes of the Government of India under the leadership of Shri Narendra Modi ji. It is the love, it is the acceptance, it is the trust, and it is the faith in the last 5 years of governance that people have reposed in us, and which is now visible to all of us on national televisions and as the Election Commission website is showing. So basically, Nupur Sharma, what you're suggesting is the excellent micromanagement of the BJP at every level is what has helped the BJP get these kind of results today. Let me take what you're saying to Nasir Hussain. Nasir Hussain, where does this leave the Congress leadership? Is this going to be really a referendum on Rahul Gandhi? Where does it leave Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi and Sonia Gandhi? I think Mr. Rahul Gandhi, after becoming the president, has delivered for the Congress. He has got 3 states for the Congress in the Hindi heartland. Prior to that, we won Punjab and Karnataka.
5 states we are in government today. So I don't think there's any issue on the leadership of Mr. Rahul Gandhi. He has fought from the front. He had forced the government, the NDA government, to have a relook at the real estate regulatory bill. He campaigned against demonetization. He campaigned against the anti-people policies of the government. He stood against. He raised the corruption issues. He campaigned to the length and breadth of the country. Probably what we couldn't do is, probably as an organization at various levels we have failed. We were not a match for the BJP's propaganda machinery, whether it is on the social media or on the national media. And the kind of resources that were there at the disposal of Mr. Narendra Modi ji, the use of institutions, the write-offs he had done to his crony friends, which Nasir Hussain, I think we can leave that for another day, because the people of this country have spoken in a clear voice that they want the BJP and they want Prime Minister Narendra Modi to continue for the next 5 years. The institutions and so on and so forth can be spoken about on another day, but clearly this throws up questions as far as the leadership is concerned. Uday Kumar, आप क्या सोचते हैं लीडरशिप के, कांग्रेस की लीडरशिप के बारे में? राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी को अभी करना क्या चाहिए? देखिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हुआ, जो आप देखें कि आप कम्युनिकेट कितना कर पाते हैं, आप अपनी बात लोगों तक कितना ढंग से आप पहुंचा पाते हैं और कैसे लोगों से कनेक्ट कर पाते हैं। अब स्थिति ये आई कि इसमें हम ये कहेंगे कि मोदी इसमें सफल रहे, अपनी बात लोगों को समझा पाने में, लोगों को कनेक्ट करवाने में। एक बात निश्चित तौर पर, अगर पिछला चुनाव भी देखें और आज का चुनाव भी देखें, अगर कांग्रेस 100 भी नहीं पहुंच पा रही है तो निश्चित तौर पर लीडरशिप की कमजोरी तो है। अगर आप उसके पहले वाला चुनाव देखें तो वो सोनिया गांधी की लीडरशिप में हुआ था और वो उसमें मजबूती से कांग्रेस सामने आई थी, भले ही उसको बहुमत न मिला हो, लेकिन वो मजबूती से आई थी। आज स्थिति यह है कि लोगों में भी यह समझ में नहीं आ रहा है कि लीडरशिप कैसा है और क्या है। अभी इस बार प्रियंका सामने आई, लेकिन प्रियंका को खास करके ईस्टर्न यूपी का इंचार्ज बनाया गया। काफ़ी मेहनत की प्रियंका ने, लेकिन जो अभी रुझान जो है सामने, वो तो स्पष्ट है कि वहाँ एक्सेप्टेंस वो नहीं हुआ। तो एक होता है एक तमाशा, और तमाशे में सभी लोग ताली बजाते हैं। सपोज करिए आपने कहा, एक जुमला निकाला कि चौकीदार चोर है, सभी लोग नारे लगाते हैं, लेकिन जो नारे लगाने वाले हैं वो क्या आपको वोट डालते हैं कि नहीं डालते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और कितना कनेक्ट कर पाते हैं आप उससे, और क्या उसका कोई एंटी रिएक्शन तो नहीं हो रहा है जो पोलराइज कर रहा है कहीं किसी को, यह नहीं सोचा गया। Aditya, I'd like to bring you in here now. So where does the Congress really need to go back to the drawing board, reinvent itself, think about strengthening state level leaders? What is it that they need to do really? Well, at this point it's very hard to say exactly what they need to do, because they're hemorrhaging everywhere. If you look at the results, I mean, they're leading only in 50 seats. They barely managed to take up their tally by 10% from last time around. Not only that, in states where they are, in Kerala is actually the only state which is showing a good result for the Congress. The Congress is nowhere in Delhi, where it had a government once. It is nowhere in UP. It is nowhere in Madhya Pradesh, Rajasthan. So, I mean, I don't think only the leadership can be blamed. The party structure, those who think as Congress, it's disintegrated. बड़े से बड़े नेता जो हैं कांग्रेस को भी पीछे चल रहे हैं और इस समय ट्रेल कर रहे हैं। लेकिन अब हम आपको लिए चलते हैं अपने डेटा सेंटर, जहां पर ऐश्वर्या मौजूद हैं कुछ और डेटा के साथ। Thank you so much, Sonia. Thank you so much, Sonia, for that. And let me get you all the data that we are getting at this moment. If we talk about the overall figure, of course, the UP has not even managed to reach the 100 mark. And NDA is so far leading on 345 seats. UPA is leading in 92 seats, and others are leading on 105 seats. So 345 seats out of 542 seats is the number that we are getting at this moment for NDA. And let's now take a look at the states where BJP is the ruling party. Let's first talk about Haryana. Remember, this is the state where Rahul Gandhi had extensively campaigned, and even PM Modi was here in the state for a long time here for campaigning. Of the 10 seats in Haryana,
BJP is leading in all the 10 seats. So there seems to be no sort of any anti-incumbency as far as Haryana is concerned. BJP leading on all the 10 seats. Remember, this is the state where Rahul Gandhi had extensively campaigned. And speaking about Gujarat, again, there were some political pundits who were saying that there could be some sort of anti-incumbency that could be seen in Gujarat, but nothing so far. BJP is leading on all the 26 seats as far as the state of Gujarat is concerned. Now let's talk about Maharashtra. Here the BJP, out of the 48 seats, BJP is leading on 24 seats. Shiv Sena is leading on 20 seats. Remember, these two parties have formed an alliance, and if we add that up, of course, the BJP there and Shiv Sena totaling number would be 44. Remember, last time the party had won 41 seats. So it's actually an advantage of 3 seats at this moment. And the Congress is only leading in 3 seats and others on 1 seat. Now let's talk about Uttar Pradesh. Of course, this is the most important state because we are talking about 80 seats here. And BJP is leading in 54 of these seats. As far as Apna Dal S is concerned, which is of course also one of the ally of the BJP, it is leading on 1 seat, so that would add up to 55. Speaking about the Mahagathbandhan, BSP is leading on 13 seats, SP is leading on 8 seats, and RLD is leading on 2 seats. So if we add that up, that only adds up to 23. So there was a huge talk about of how much of opposition, really strong opposition, that Mahagathbandhan would be, but that Mahagathbandhan factor really seems to be not working as far as the state of Uttar Pradesh is concerned. Talking about Jharkhand, of course, 14 seats of Jharkhand voted in this Lok Sabha elections, and out of these 14 seats, BJP is leading in 10 seats, and Indian National Congress is leading on 2 seats, which is a sort of solace for the party because the party had not won any seat in the state in 2014, and JMM had won 2 seats in 2014. It is now leading in 1 seat. Now let's discuss some of the states where BJP is not the ruling party. Talking about Madhya Pradesh, here the BJP is leading in 28, Congress in 1, Chhattisgarh and others 0. So it is not the ruling party, but look at the advantage that the BJP has got in Madhya Pradesh. Talking about Chhattisgarh, BJP is leading in 9 seats, Congress on 2. So this is the tally that we have at this moment about Chhattisgarh. Of course, Chhattisgarh is not ruled by the BJP, but look at those numbers, leading on 9 seats and Congress 2. And talking about Karnataka, of the total seats, 28 Karnataka seats, BJP is leading on 23, Congress is leading on 3, and JDS on 1, and others 1. So a huge question mark over the JDS existential crisis that we were talking about, but what happens? It is leading on only 1 seat. Back to you, Sonia. जी ऐश्वर्या, तो लग रहा है जिस तरह से आपने आकलन बताया है कि बीजेपी हर जगह इनरोड्स कर रही है, उन राज्यों में भी जहां पर अभी तक वो मौजूद नहीं थी या फिर बहुत ही कम उसकी संख्या थी, लेकिन अब फ्रैंक लग रहा है कि पूरे देश में एक तरह से भगवा लहर नजर आ रही है. Absolutely. I mean, if you look at the map of India now, barring Kerala and Tamil Nadu, there's a wave of saffron sweeping through right from the south to the north to the west and to the east as well. We'll slip into a short break now. We'll continue our analysis on the other side. Stay tuned. We'll be right back.